Question 26. The engine of a motorcycle can produce maximum acceleration 5 meter per second square. Its brakes can produce a maximum retardation 10 meter per second square. What is the minimum time in which it can cover a distance of 1.5 kilometer? Given data के according हमें मैक्सिमम एक्सीलरेशन और मैक्सिमम रिटार्डेशन, मतलब ये रियल लाइफ सिचुएशन है। बेसिकली रियल लाइफ में क्या होता है, हम गाड़ी चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम एक्सीलरेट करते जाते हैं, फिर हमको जहाँ रुकना है हम रिटार्डेशन भी करते हैं बिकॉज वी अप्लाई ब्रेक, तो गाड़ी जो है इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल which includes acceleration alpha, which includes retardation beta, that is given by 1/2 alpha beta square, alpha beta not beta square। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, हाफ अल्फा बीटा टाइम स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। This is a general formula for distance covered when a vehicle or an object accelerates and also deaccelerates. In total time t there is certain acceleration, there is certain deacceleration. तो ये general formula है, where alpha is acceleration, beta is retardation. Okay, so while solving questions for JEE or NEET, you need not to know कि ये formula derive कैसे हुआ. It is not important. Important is the idea. जहाँ पे theory important है मैं खुद ही बता दूंगा, but here you just need to know total distance covered by a particle or a vehicle when it is accelerating for certain fraction of time and deaccelerating for certain fraction of time is given by this, where t is total time. Okay, हमको t ही पूछा है यहाँ पे। What is the minimum time in which it can cover a distance of 1.5 kilometer? So 1.5 kilometer is nothing but 1500 meters. Half acceleration is 5, retardation is 10, then alpha plus beta 5 plus 10 t square। तो ये आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे रिटार्डेशन के लिए you should not be using negative value, negative sign basically. Okay, just put the value। तो ये 5 है, ये 1500 था, तो easy है, this is quite easy, very simple thing, just you need to know the formula here। Okay, good, so solve कर लो, बहुत easy है, you just have to solve this। तो 3000 into 5 plus 10 is 15 upon 50 is equal to t square। Simple, एक एक गया, वन जा, या तो ऐसा करो या फिर बेटर रहेगा वन जा एंड थ्री जा, दिस इज 900 total। Solve it, if I am not wrong that is 900, so t square is 900, so t is 30 seconds। So the vehicle covers a distance of 1.5 kilometers in 30 seconds when the maximum acceleration, yes, इस फॉर्मूला में अल्फा ये मैक्सिमम होता है, बीटा ये मैक्सिमम होता है, तो ये किसी भी जनरल वैल्यूज के लिए नहीं है, ये अल्फा बीटा मैक्सिमम वैल्यूज है एक्सेलरेशन के और रिटार्डेशन के, राइट? गुड, तो दैट इज व्हाट यू शुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car starts from rest and moves with uniform acceleration a on a straight road from time t equal to 0 to time t equal to capital T. After that, a constant deceleration brings it to rest. In this process, the average speed of the car is, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब हमको केस 1 में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा s1, केस 2 में निकालना पड़ेगा s2,
और दोनों केसेस में टाइम देखना पड़ेगा कितना है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम करोगे तो एवरेज मिल जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द सिंबल्स दैट वी यूज। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है क्योंकि उन्होंने बोला है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। टाइम बोला है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T तक एक्सेलरेशन कितना हुआ a। ओके, तो डिस्टेंस तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे। डिस्टेंस इज s1 विच इज ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बाय द वे u इज 0 ओके प्लस हाफ a और टाइम इज t स्क्वायर, तो मुझे मिल गया s1 इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the first t seconds is this, right? After that, इसके बाद बोला है इसके लिए मुझे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी मतलब 0 प्लस ए टी। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट केस का, this will become initial velocity of second case. So for second case u, let us say 2 or 1, जो भी notation use करोगे, u1, let us say u1, that is v, that is final of first case, that is at, right? Okay, ये a जो है ये पहले केस का a है। Okay, that is what you have to remember. In second case जो retardation होगा, और टू मेक इट मच मोर सिंपलर फॉर यू, मैं प्राइम से डिनोट करता हूँ। प्राइम मतलब सेकेंड केस। ओके गुड। रिटार्डेशन जो होगा जिसको मैं बोल देता हूँ ए डैश, ओके इसको मैं ए डैश बोल रहा हूँ, दिस इज रिटार्डेशन। फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस, देखो कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ब्रिंग्स इट टू रेस्ट। पहले एक्सेलरेशन हुआ फिर डी एक्सेलरेशन हुआ, मतलब फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस इज 0, राइट? तो मैं वापस से v डैश इक्वल टू u डैश प्लस a डैश t यूज कर सकता हूँ, a डैश t डैश, where t डैश is nothing but, as I told you, t डैश is nothing but time for retardation, मतलब सेकेंड केस का, डैश मतलब सेकेंड केस in short. What is v dash? 0. Okay. What is u dash? That is a t. What is a dash t dash minus a dash t dash? क्यों माइनस? तो यहीं पे मैं से देता हूँ क्योंकि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन ऑलवेज कम्स विद अ नेगेटिव साइन हियर, तो रिटार्डेशन है। इसका मतलब मुझे मिल गया a t प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन टाइम इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम इन द सेकंड केस, राइट? मुझे क्या चाहिए? एवरेज स्पीड, मतलब मुझे s1 मिल गया, s2 चाहिए। s2 कैसे फाइंड करोगे? इस केस में सिंपल है, you can find out s2 by ut plus 1/2 at square, right? Either by that or by v square equal to u square plus 2as वाला केस, that is also fine. So we can use v dash square equal to u dash square माइनस क्यों लिखा? रिटार्डेशन है। a dash s2, सिर्फ s dash नहीं लिखा मैंने, I can use s dash also, doesn't matter really. Okay. तो फाइनली 0 हो रहा है। u dash मतलब आपके पास पता है 80 है, तो a स्क्वायर t स्क्वायर सॉरी टू a डैश हम फिलहाल a डैश यहाँ से लिख सकते हैं, दैट a डैश इज 80 by t डैश, और उसका भी स्क्वायर करूँगा मैं, तो a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन t डैश का स्क्वायर इनटू s2। देन यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है मैं कर देता हूँ, a स्क्वायर t स्क्वायर 2 times of a
स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर h2. Okay, correct, correct. There is something which is not correct here. I know there is something which is not correct. That is squares. A dash का square नहीं लेना है, मैंने square लिया है. तो मैंने ऐसा क्यों लिखा? Because this is something when solving question घाई घाई में गलती होती है, क्योंकि ये a dash प्राइम ऊपर लिखा मैंने, तो sometimes we just take it to the square और square कर देते हैं. तो you have to pay attention that you don't have to do squarings. अगर square किया तो गए आंसर गलत. So don't do it. Just be little careful. थोड़ा careful रहो and you will not do those silly mistakes. Right. So this is not a square term. Now simplify this. A square t square equal to 2at upon t dash s2. ये एक गया, तो मुझे मिल जाएगा s2 इज इक्वल टू हाफ a t इंटू टी डैश. ओके, सिंपल. हमें क्या करना था? हमें एवरेज स्पीड निकालना था. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए. s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2. s1 हमारे पास आया 1/2 at स्क्वायर और s2 हमारे पास आया है 1/2 at t dash upon t1 plus t2. t1 is t and that is t dash. Just part of notation. सिर्फ notation का part है ये. तो put. I can take out half at common. t बचेगा पहले टर्म में, t dash बचेगा दूसरे टर्म में और डिवाइड बाय t प्लस t dash तो है ही. मतलब ये और एक कैंसिल हो गया. मतलब फाइनली एवरेज स्पीड इज हाफ 80 by 2. राइट. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? हमको बोला है कि कार रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ वो मूव हो रहा है फॉर टाइम कैपिटल T. तो पहले केस में मुझे s1 डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट कैपिटल T सेकेंड्स मिल गया हाफ at स्क्वायर. मैंने फाइनल वेलोसिटी सिर्फ इसके निकाला है क्योंकि इसके बाद गाड़ी डीएक्सेलरेट होने वाला है. मतलब यहाँ का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो सेकंड केस का इनिशियल वेलोसिटी होगा, क्योंकि मैं केसेस में डिवाइड कर रहा हूँ. तो मुझे मिल गया इनिशियल केस का सेकंड केस का इनिशियल वेलोसिटी 80. रिटार्डेशन है माइनस a डैश. ये माइनस साइन आपको रखना पड़ेगा, रिटार्डेशन है. फाइनली कार स्टॉप होने वाला है तो फाइनल वेलोसिटी इन सेकंड केस इज गोइंग टू बी 0. तो v इक्वल टू u प्लस at से सॉल्व करते करते मुझे मिल गया at इक्वल टू a डैश t डैश. मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम इन बोथ केसेस इज कांस्टेंट क्वांटिटी. फिर मुझे वहाँ से मिल गया a डैश इक्वल टू 80 बाई t डैश. फिर डिस्टेंस निकालना है s2 क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के लिए s1 प्लस s2 करना पड़ेगा, तो s2 पता होना चाहिए. तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करके मैंने s2 निकाल लिया हाफ at t डैश. Then I just substituted these values in the formula for average speed and done. Simple. Question number 28. ये बहुत simple है. An object accelerates from rest to a velocity of 27.5 meter per second in 10 seconds. Then find the distance covered by object in next 10 seconds. अगले 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो हमको यूज तो वही करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर. ओके, राइट. ऐसे केस में सिर्फ इतना है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी 27.5 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट 10 सेकेंड. ओके, राइट. इसका मतलब ये है कि मैं पहले केस का एक्सेलरेशन
फाइंड करके दूसरे केस में यूज कर सकता हूँ, राइट? एंड इनिशियल वेलोसिटी वी नो. So what we have to do here is a very simple thing. S is equal to ut. U is nothing but velocity that is given to you, 27.5. T is 10. अगले 10 सेकंड में क्या हो रहा है, ओके, प्लस हाफ ए. ए कहाँ से फाइंड करूंगा मैं? ए मैं इनिशियल वैल्यू से फाइंड करूंगा, v माइनस यू बाई टी, ये इनिशियल है, ओके, राइट, इंटू टी स्क्वायर. अब ये ऐसा सॉल्व करना मतलब क्रिएटिंग कंफ्यूजन फॉर योरसेल्फ. तो इसलिए क्या करना है ऐसे केसेस में, डोंट डू दिस. ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, ऐसे केसेस में आप लोग पहले जो आपको दिया है उससे आप एक्सेलरेशन निकाल लो और बाद में ही एस का फॉर्मूला यूज करो. So from what you have been given, what you can do is A is equal to v minus u by t. इनिशियल केस आपको A मिल जाएगा 27.5 अपॉन माइनस 0 अपॉन 10 ऑफ कोर्स. तो A मिल गया 2.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा होगा. तो दे आर टेलिंग यू अगले 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, ओके. मतलब वापस सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ केस 1 which will be 27.5 meter per second, and acceleration is constant in this case. That is what they are trying to tell you. फिर अगले 10 सेकेंड में आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, दैट इज गिवन बाय ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. u कौन से केस का? सेकेंड केस का. तो ये सेकेंड केस का है, तो 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड. What is initial velocity in second case? Final of the first case. What is time? 10 seconds. Next 10 second बोला है. Half A. What is A? 2.75. But A in first and second case is more or less same. क्यों? Because उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि the body is going to change its acceleration. नहीं, तो जो value है वो use करो. And then this square. This is 275 first term. ये आ गया आपका 275 into 100. 2.75 into 100 is again 275 by 2. 275 का हाफ पता होना चाहिए आपको, पता होना ही चाहिए आपको. इट इज इजी, ओके, इट इज वेरी इजी. 280 का हाफ 140. 140 में से 2.5 है 137.5. 137.5 में 275 ऐड कर दिया तो 412.5 आता है. तो ये आ गया आपका आंसर. मैं वापस बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ करना इतना था. इनिशियल कंडीशन से आपको ए फाइंड करना था. पहले केस का फाइनल वेलोसिटी मतलब सेकंड केस का इनिशियल बनेगा. देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम है. हमने रेस से स्टार्ट किया, हम एक्सीलरेट करते गए, 10 सेकंड के बाद मेरा स्पीड हो गया 27.5. अगले 10 सेकंड, अगला 10 सेकंड, अगला मतलब जब अगला 10 सेकंड का मैं बोलता हूँ मतलब 11 सेकंड पे स्पीड कितना होगा जो 10 सेकंड में गाड़ी ने अचीव किया, राइट? इन द फर्स्ट 10 सेकंड the vehicle has reached from 0 to 27.5, so that 27.5 becomes initial for second case. बस इतना ही था. And the question is done. Option number C. Then the displacement of a particle is proportional to the cube of time elapsed. Displacement x is proportional to cube of time. मतलब x is equal to some constant t k into t cube, some constant of proportionality. How does the acceleration of the particle depend on the time? How does depend on the time? Simple question है. ऑप्शन डी आएगा. कैसे?
वेलोसिटी इज dx by dt, तो d dt ऑफ k t क्यूब, k कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t, k आपको पता है ये आना चाहिए 3k स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको 3t स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है हाउ डू यू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स। तो ये आ गया आपका 3kt स्क्वायर। व्हाट इज एक्सेलरेशन? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो d dt ऑफ वेलोसिटी मतलब 3kt स्क्वायर, तो 3k आउटसाइड, ओके 3k आउटसाइड, देन t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो 3k और t स्क्वायर का 2t मतलब 6kt। a is 6kt। अरे लेकिन 6 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, तो a is proportional to t। तो ओरल था, देख के समझ में आ गया था। कैसे बताता हूँ। पहली बात, अगर डिस्प्लेसमेंट t क्यूब को प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी जो है वो t स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डेरिवेटिव में पावर कम होता है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है एक एक से। एक डेरिवेटिव t के पावर को एक से कम करेगा, मतलब अगर x is proportional to t क्यूब तो v will be proportional to t स्क्वायर। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी का डेरिवेटिव, मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू t होगा। ओरल क्वेश्चन था। और ये 2t तो नॉनसेंस है, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, क्योंकि कांस्टेंट्स को हम प्रोपोर्शनलिटी साइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, यू ऑलवेज एब्जॉर्ब ऑल द कांस्टेंट्स इन प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो दिस क्वेश्चन वाज ओरल क्वेश्चन। If displacement is proportional to t cube, velocity is proportional to t square, acceleration is proportional to t। खत्म, खत्म क्वेश्चन, और कुछ नहीं था उसमें, ये ओरल क्वेश्चन था। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, मैथमेटिक्स थोड़ा सा, इसमें भी हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो दिस इज अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड टेकिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था। Acceleration of the particle is given by 2t minus 1. Velocity of the particle at t equal to 5 second is। देखो ऐसा है, अगर आप x का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको v मिलता है, ओके। अगर आप v का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको a मिलता है, राइट। सो इफ आई नो डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मुझे अगर x दिया है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस समथिंग, तो मैं उसका डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे वेलोसिटी दिया है तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ बाय इंटीग्रेटिंग। सो x इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। क्यूब कहाँ से आया? डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑपरेशंस। तो dx इक्वल टू v dt था, तो मैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, बराबर, राइट। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेशन ओवर v dt। सिमिलरली similar lines पे dv will be equal to a dt, मतलब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो v is equal to इंटीग्रेशन a dt, राइट, गुड। वो यूज करना है मुझे, तो a is equal to dv by dt is equal to 2t minus 1। अभी इतना भी नहीं करना, अगर आपको इतना भी नहीं करना तो ये फॉर्मूला मैंने बना के दिया। अगर आपको वेलोसिटी दिया है तो उसका डेरिवेटिव ले लो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है तो उसको इंटीग्रेट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a ओवर टाइम एंड दैट इज 2t minus 1 dt, and since 2 is constant it will go outside integral, so I will be integrating of over t minus 1 dt. So I will get v is equal to 2 split integration t dt माइनस इंटीग्रेशन 1 dt। सिर्फ मैंने क्या वो t dt को अलग कर लिया, 1 dt को अलग कर लिया, बीच में नेगेटिव साइन था, नेगेटिव है। ओके, तो दैट इज 2। एंड बाय द वे इस पे लिमिट्स का भी काम होगा। लिमिट्स मतलब उन्होंने बोला है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, राइट। तो ठीक है, मैं वो लास्ट में डाल देता हूँ, डजंट मैटर। t का इंटीग्रेशन जैसे आपको पता है t रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू टी रेज टू n माइनस 1, वैसे t रेज टू n का इंटीग्रेशन dt दैट इज t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हमारे पास यहाँ पे t रेज टू 1 है, तो t रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dt इज जस्ट t। तो ये मिल गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। So velocity at t equal to 5, तो 2 into t की जगह 5 डालो, 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं इसको, 2 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 5, कैंसिल कैंसिल, 25 माइनस 10 इज 15, 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। टेक अवे पॉइंट्स, इफ यू नो, अगर आपको ए का इक्वेशन पता है इन टर्म्स ऑफ टाइम तो उसका इंटीग्रेशन करो, दैट विल गिव यू वेलोसिटी। सो व्हाट यू शुड नो इज जस्ट दिस पार्ट। फिर 2 जो था कांस्टेंट था, बाहर रख दिया। ए का तो हमको फॉर्मूला दिया ही है, t माइनस 1 dt, तो t dt माइनस 1 dt, और इंटीग्रेशन दोनों का ऐसे लगा दिया। फिर t रेज टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो अप्लाई कर दिया, और इंटीग्रेशन ओवर dt, 1 dt मतलब जस्ट dt इज जस्ट t, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। और हमको वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पूछा है, तो मैंने वहां पे t की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मुझे मिल गया v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 इज आल्सो इजी, इजी है, राइट। A body is moving with uniform acceleration, describes 40 meter in first 5 seconds। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक बॉडी मूव हो रही है, उसने पहले 5 सेकंड में 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकंड में 65 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो इजी केस है। व्हाई I can say it is easy because what I know is s equal to ut plus 1/2 at square. So in case 1, I can write down s equal to ut, मतलब s1 is equal to ut plus 1/2 at square, and final velocity v will be u plus at. Okay. Case 2 is s2 is equal to u2t प्लस 1/2 at स्क्वायर, क्योंकि टाइम सेम है ना, इसमें भी 5 सेकेंड और केस 2 में भी 5 सेकेंड, तो इसलिए मैं टी सेम लिख रहा हूँ, और इसके लिए मैं एक ट्रिक यूज करने वाला हूँ। अदरवाइज हम लोगों को क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता, राइट। अलग तरीके से मतलब कैसे, वो बता देता हूँ आपको मैं। तो आप क्या करते, आप यहाँ पे s1 की वैल्यू 40 डालते, t की वैल्यू 5 डालते, और ये हाफ 25/2 ये ऐसा आता है।
और S2 भी दिया है, तो फिर आप 65 दिया है S2 इज इक्वल टू U2t। U2 तो यहाँ से सी इनिशियल वेलोसिटी इन सेकंड केस इज फाइनल ऑफ द फर्स्ट, तो हमको ये भी सॉल्व करना पड़ता, हाँ तो ये भी सॉल्व करना पड़ता। मतलब ये आता आपका U प्लस 5a, मतलब ये आता आपका U प्लस 5a। तो फिर वो आप यहाँ लिखते, राइट। तो बेसिकली दो इक्वेशन, दो अननोन, तो यू नो हाउ टू सॉल्व this particular thing. If you have two equations and two unknown, you can solve them, okay? So you can do that thing, आप कर सकते हो, which I don't want to do, तो मैं ये मेथड नहीं यूज करने वाला हूँ। I have just told you कि एक सेकेंड मेथड से सॉल्व होता है, तो v is equal to u plus at, v1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे u plus at। और जैसे मैंने बताया सेकेंड केस का इनिशियल ये पहले केस का फाइनल है, तो ये u प्लस at आ गया। मतलब मैं S2 इक्वल टू U2 क्या है आपका u प्लस at, बिकॉज U2 इज V1 एंड दैट इज u प्लस at, और एक t अलग से बाहर बैठा हुआ है, तो दैट t विल बी हियर, तो u प्लस at इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर। रिमेंबर दैट यहाँ पे टी सेम होने की वजह से हम लोग लिख पा रहे हैं, दोनों केसेस में टाइम की वैल्यू सेम होने की वजह से दोनों जगह पे टी लिखा, नहीं तो T1 T2 लिखना पड़ता। तो S इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब S2 इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये जो है ये S1 है, इफ यू रिमेंबर, तो S2 इज इक्वल टू S1 प्लस at स्क्वायर, तो S2 माइनस S1 इक्वल टू at स्क्वायर। गुड, राइट, ओके। व्हाई आई हैव बीन डूइंग दिस? क्योंकि मुझे यहाँ से a मिल जाएगा, S2 माइनस S1 बाई टी स्क्वायर, राइट। why I cannot find, मुझे बेसिकली v इक्वल टू u प्लस at से या फिर v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से a क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए मैं ये दो इक्वेशन यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकता। जब तक मैं एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करता तब तक मुझे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं मिलेगी, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो व्हाट इज S2 65, व्हाट इज S1 40, व्हाट इज t स्क्वायर 5 स्क्वायर, ओके, दैट इज 25 by 25, दैट इज 1। तो मुझे एक्सेलरेशन मिल गया 1, ओके, गुड। अब ये a की वैल्यू 1 मैं S1 में या फिर S2 के इक्वेशन में डाल सकता हूँ। S1 is better and simple, right? So using a equal to 1 in equation number 1, S1 हमको बताया है, S1 40 मीटर, 40 मीटर, U तो फाइंड ही करना है, राइट। टाइम तो 5 सेकेंड ही बोला था ना उन्होंने, पहले 5 सेकेंड में S1 डिस्टेंस करूँगा, प्लस हाफ a की वैल्यू 1 और ये 5 स्क्वायर, तो दिस शुड नॉट अपीयर 15 स्क्वायर, तो मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। तो 40 इक्वल टू 5u प्लस 25 बाई 2, दैट इज 12.5। 40 में से 12.5 गए तो 27.5, तो 5u इज इक्वल टू 27.5, सो u इज इक्वल टू 27.5 बाई 27.5 बाई 2 बाई 5, तो u is equal to nothing but 5.5 meter per second. I will repeat it again. पहले केस में 5 सेकेंड में 40 मीटर, अगले 5 सेकेंड में सेकेंड केस में 65 मीटर। इतना ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास।
तो हमने क्या किया, x1 इक्वल टू यू टी प्लस 1 ऑफ ए टी स्क्वायर लिख लिया। v1 मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 सेकेंड्स v1 इज u प्लस ए टी। s2 इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 ऑफ ए टी स्क्वायर, बट u2 मतलब सेकेंड केस का इनिशियल, ये पहले केस का फाइनल वेलोसिटी होता है u प्लस ए टी। तो सब्स्टिट्यूट कर लिया, हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। सिंप्लीफाई करते करते s2 माइनस s1 इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो a इज s2 माइनस s1 बाई टी स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली एंड आई हैव फाउंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन। a की वैल्यू 1, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, और इक्वेशन नंबर 1 में s1 की वैल्यू 40, t की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो u की वैल्यू आप सॉल्व करते करते 5.5 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगी। राइट, गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट फॉर द डे। अच्छा क्वेश्चन है। The displacement x of a particle varies with time t as x is equal to a e raised to minus alpha t plus b e raised to beta t, where a, b, alpha, beta are positive constant. The velocity of the particle will go on decreasing with time, be independent of alpha, beta, drop to 0 when alpha equal to beta, go on increasing with time. Easy है because velocity is nothing but derivative of time, derivative of displacement with respect to x with respect to time. So dx by dt मतलब, so d dt of a e raised to minus alpha t plus b e raised to beta t। मतलब मुझे करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ इन दो टर्म का डेरिवेटिव लेना है। एंड आई अश्योर यू, यू विल बी फार अहेड ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स इस 11th के स्टार्टिंग फेज में कोई नहीं लेता है, बट आई वॉन्ट यू टू डू इट एंड आई विल टेक यू टू द लेवल रिक्वायर्ड फॉर JEE एंड नीट। तो एक कांस्टेंट है, ये ऊपर गया बाहर गया, कांस्टेंट बाहर आता है। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू अल्फा टी विद रिस्पेक्ट टू t प्लस b आउटसाइड आ गया, क्योंकि कांस्टेंट है, उन्होंने बोला है कि कांस्टेंट e रेज टू अल्फा टी का डेरिवेटिव, या तो इन जनरल e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्सपोनेंशियल f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t? मैं विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे t है, तो व्हाई शुड आई बी डूइंग दिस थिंग्स। ओके, तो पहली चीज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है, e रेज टू f ऑफ t का डेरिवेटिव e रेज टू f ऑफ t ही होता है। जस्ट एडिशनल मल्टीप्लिकेशन इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब जो एक्सपोनेंट में है, जैसे अल्फा टी है नेगेटिव के साथ, बीटा टी है, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक बार। तो बाय रूल e रेज टू माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस अल्फा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज देयर इन द एक्सपोनेंट, मतलब अल्फा टी माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव, प्लस b e रेज टू बीटा टी का डेरिवेटिव e रेज टू बीटा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ बीटा टी। तो v इज इक्वल टू a e रेज टू माइनस अल्फा टी, माइनस अल्फा कांस्टेंट आउटसाइड dt by dt is 1 plus b e raised to beta t। okay, beta outside derivative of t with t is 1। okay, so overall finally what you will get is सिंपल है। देखो अब ऐसा है, उन्होंने पूछा है कि वेलोसिटी के साथ क्या होने वाला है। ओके, तो वेलोसिटी का इक्वेशन तो मुझे मिल गया, माइनस ए अल्फा ई रेज टू अल्फा टी प्लस बी बीटा ई रेज टू बीटा टी। बट मैं वेलोसिटी के इक्वेशन से कुछ नहीं बता सकता, राइट? वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, ये कौन बताएगा? ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन बताता है। अगर एक्सेलरेशन 0 तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन ये नेगेटिव आ गया तो रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग।
तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना था इन शॉर्ट। सी वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन देता है, ये बताना चाहिए। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन वेलोसिटी देता है, ये बताना चाहिए। एनीवेज, तो डी डी टी ऑफ वेलोसिटी इज माइनस ए अल्फा ई रेज टू माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई रेज टू बीटा टी। अब ये सिंपल हो गया, क्यों? बिकॉज जब मैं पहली टर्म का डेरिवेटिव लूंगा तो व्हाट आई विल डू इज अगेन सेम थिंग, माइनस ए अल्फा ई रेज टू माइनस अल्फा टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म बी बीटा ई रेज टू बीटा टी। तो a इक्वल टू माइनस ए अल्फा कॉन्स्टेंट आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ ओके, वेरी गुड। ओके, सो a वापस से हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्प्लिट कर रहे थे, पहले टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव। और हमें ऑलरेडी पता है व्हाट वी नो इज माइनस ए अल्फा कांस्टेंट आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू अल्फा टी प्लस बी बीटा आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू बीटा टी। अभी टाइम पास मत करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू अल्फा टी ये आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। ओके राइट, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू बीटा टी ये भी आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। गुड, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। a इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा, इसका डेरिवेटिव होगा ई रेज टू माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा। वो पता है, ये फाइनल स्टेप ये था, और ई रेज टू बीटा टी का फाइनल डेरिवेटिव ये था, मैंने बता दिया आपको वो, दैट यू शुड प्रैक्टिस नाउ। b beta e raised to beta t into beta, that is the derivative of e raised to beta t. So in short, after simplifying I will end getting this minus or minus plus, so a alpha square e raised to minus alpha t plus b beta square e raised to beta t. Right? Good. एक्सेलरेशन का इक्वेशन पॉजिटिव बन गया है क्या नेगेटिव? कहीं पे भी पहला टर्म भी पॉजिटिव, दूसरा टर्म भी पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, ऑप्शन नंबर डी। तो a is positive, therefore v will increase with time. Right? Good. सिंपल, सिंपल ही है, और ये क्वेश्चन भी ओरली होता है अगर आप डेरिवेटिव्स में एक्सपर्ट हो गए तो। dx by dt देख के, वेलोसिटी इज dx by dt देख के समझ में आता है, माइनस ए अल्फा ई रेज टू अल्फा टी प्लस बी बीटा ई रेज टू बीटा टी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव, तो माइनस ए अल्फा ई रेज टू अल्फा टी नेगेटिव साइन के साथ माइनस ए अल्फा ई रेज टू माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा, मतलब माइनस माइनस प्लस ए अल्फा स्क्वायर ई रेज टू माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई रेज टू बीटा टी। ओरली ए पॉजिटिव बिकॉज बोथ टर्म्स आर पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट।